6.2 I guess. Okay. So 6 में कुछ homework questions थे. Any doubts? Eighth. Okay. Okay. Eighth one is little bit different. So eighth solve करते हैं. 6.2 question number 1 eighth. Okay. Y equal to C1 e raised to 2x plus C2 e raised to 5x. हमें क्या करना है? डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो रिकॉल हम लोग ने क्या क्या किया था कल. तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो सबसे पहले ऑब्जर्व करना है हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट आर देयर. सो C1 एंड C2 दोनों डिफरेंट है, राइट? डिफरेंट आर्बिट्री कांस्टेंट. सो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर. सो ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा 2. दैट मीन्स हम इसको मैक्स टू मैक्स 2 बार ही डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? सो डिफरेंशिएट with respect to x. So dy by dx equal to C1 is constant. Derivative of e raised to 2x is e raised to 2x. Again d by dx of 2x. Use chain rule. Plus C2 is constant. Derivative of e raised to 5x is e raised to 5x. And then again differentiate 5x. Which is equal to C1 e raised to 2x. Derivative of 2x is 2. Plus C2 e raised to 5x and derivative of 5x is 5. ये हो गया equation 1, equation 2. Now again differentiate this equation 2 with respect to x. Again differentiate with respect to x. So LHS क्या हो जाएगा? d square y by dx square, which is equal to 2C1 is constant. Derivative of e raised to 2x is e raised to 2x. Again d by dx of 2x. Plus 5C2 e raised to 5x d by dx of 5x. Now this is equal to derivative of 2x is 2. So 2 into 2 is 4. 4C1 e raised to 2x plus derivative of 5x is 25. 5. 5 into 5 is 25. C2 e raised to 5x. ये हो गया equation 3 d square y by dx square. Okay. Now see equation 1, 2 and 3 चेक करो. ठीक है? क्या हर एक में C1 e raised to 2x and C2 e raised to 5x के टर्म्स हैं? In every right? And then बस उनके कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन चेंज हो रहे हैं. यहाँ पे देखो C1 e raised to 2x का कोएफिशिएंट क्या है? 1 and here 1. Similarly अभी यहाँ पे चेक करो, कोएफिशिएंट is 2 and 5 and here 4 and 25, right? Correct? So अभी इक्वेशन 1, 2 and 3 these are like linear equation जो consistent है. That means वेरिएबल सेम है, बस कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं. ठीक है? सो these three equations in C1 e raised to 2x and C2 e raised to 5x are consistent. Now तुमने 11th में किया होगा कि कंसिस्टेंट इक्वेशन जो होते हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 आता है. किया है सॉल्व? सो क्या करना है तुम्हें? जो फर्स्ट कॉलम होगा वो आएगा y dy by dx d square y by dx. y dy by dx d square y by dx square. Next column, write down coefficient of C1 e raised to 2x.
तो इक्वेशन 1 का क्या आएगा 1, फॉर इक्वेशन 2 कोएफिशिएंट इज 2 एंड फॉर इक्वेशन 3 कोएफिशिएंट इज 4. देन थर्ड कॉलम c2 e raised to 5x के कोएफिशिएंट लिखो 1, 5, 25 which is equal to 0. अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो. सी यहाँ पे अभी कांस्टेंट टर्म्स नहीं है, राइट, आर्बिट्री कांस्टेंट c1 एंड c2 इन्वॉल्व नहीं है. तो जब तुम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो तुम्हें तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा. ठीक है. सो y into, delete this row and column, cross multiply this, 25 into 2, 50 minus 20 minus 1. Now delete this row and this column, dy into dx into 25. Simply determinant find out karo. This you know, right? 5 into d square y by dx square plus 1 into, delete first row, third column, cross multiply karo, dy by dx into 4 minus 2 d square y by dx square equal to 0. अब इस सब ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा 30y माइनस 25 dy by dx माइनस माइनस प्लस 5 d square y by dx square प्लस y 4 dy by dx minus 2 d square y by dx square equal to 0. नाउ अभी जो ऐड हो सकते हैं उनको ऐड कर लो. 5 minus 2 is 3, so 3 d square y by dx square. This minus 25 plus 4 minus 21 dy by dx plus 30 y equal to 0. This is your required differential equation. Clear? चेक कर लो. I'll tell you one more method. अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना है तो मिस सुनो ना. हम्म. हेलो टेल मी. मिस, कल का एक बार इंट्रोडक्शन फिर से बताओ ना, वो मैं लेक्चर में नहीं थी कल के. कल का इंट्रोडक्शन पार्ट मीन्स मिस तुमने पीडीएफ चेक किया मैंने जो सेंड किया था? हाँ मिस, वो समझा, पर आप थोड़ा एक बार रिवाइज करवाओ ना प्लीज. ओके. तो जब जब मैं इन लोग को क्वेश्चन दूंगी ना तब मैं साइड में एक्सप्लेन कर हाँ दूंगी. ठीक है. चलेगा. ओके. सो दिस वन इज क्लियर. Okay. Now see another method. Y equal to C1 e raised to 2x plus C2 e raised to 5x. Okay. See e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? d by dx of e raised to x is e raised to x, right? That means ये टर्म कभी एलिमिनेट नहीं होगा यहाँ से e raised to x का. ठीक है. बट हमें कांस्टेंट टर्म्स एलिमिनेट करना है c1 एंड c2. सो क्या करना है, लाइक तुम डिवाइड करो इक्वेशन को आइदर बाय e रेस टू 2x और e रेस टू 5x, किसी से भी पहले डिवाइड कर लो. सो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट तुम्हारा सिंगली सिर्फ c1 या फिर c2 रह जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में 1.
तो जब तुम फिर डिफरेंशिएट करोगे तो कोई एक कांस्टेंट तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है? सो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन बाय एनीथिंग, e रेज़ टू 2x से डिफरेंशिएट कर लो या फिर e रेज़ टू 5x से डिवाइड कर लो, ओके? सो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय e रेज़ टू 5x, e रेज़ टू 2x से भी कर सकते हो। सो ये क्या आएगा, y बाय e रेज़ टू 5x इक्वल टू c1 e रेज़ टू 2x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू 5x प्लस c2। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, देन डिफरेंशिएट करो। सो y इंटू ई रेज टू माइनस 5x इक्वल टू c1, टेल मी दिस वैल्यू, e रेज टू 2x अपॉन e रेज टू 5x। e raised to Quickly, minus 3x. yes. So e raised to minus 3x, use law of indices, plus derivative of c2 is 0। एक मिनट, हमने अभी सिर्फ सिंप्लीफाई किया है ना, ओके c2। नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो LHS में आएगा u इंटू वी रूल, एंड RHS सिंपली तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो d बाई डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेज टू माइनस 5x इक्वल टू c1 d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू माइनस 3x एंड दिस d बाई डी एक्स ऑफ c2। यहाँ पे अप्लाई करो u इंटू वी, y इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस 5x plus e raised to minus 5x derivative of y with respect to x, which is equal to c1 e raised to minus 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to minus 3x, अगेन डिफरेंशिएट minus 3x plus 0, ठीक है? now this is y into e raised to minus 5x and again derivative of minus 5x plus e raised to minus 5x dy by dx equal to माइनस 3x, डेरिवेटिव आएगा माइनस 3c1 e रेज टू माइनस 3x, ओके? सो फाइनली इक्वेशन क्या मिला, माइनस 5y e रेज टू माइनस 5x प्लस, इज इट करेक्ट? हाँ, e रेज टू माइनस 5x dy by dx equal to minus 3c1 e raised to minus 3x, okay, this much is clear। ये हो गया, हम लोग ने अभी तक एक ही बार डिफरेंशिएट किया है, राइट? ये हो गया इक्वेशन 2। तुम एक और बार इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो डिफरेंशिएट करने से पहले नाउ सी, ये जो e रेज टू माइनस 3x है, अब तुम e रेज टू माइनस 3x से डिवाइड करो, तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा। जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो ये 0 आएगा, ठीक है? सो डिवाइड बाय e रेज टू माइनस 3x, तो ये क्या आएगा, 5 माइनस 5y इंटू e रेज टू माइनस 5x अपॉन e रेज टू माइनस 3x प्लस e रेज टू माइनस 5x अपॉन e रेज टू माइनस 3x dy by dx equal to minus 3c1। now simplify this, minus 5y e raised to, ये वैल्यू क्या आएगा, minus 2x plus e raised to minus 2x dy by dx equal to minus 3c1। अब इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर लो, बस ये 0 हो जाएगा एंड जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। कंप्लीट दिस।
एंड चेक करो क्या दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन सेम मिल रहा है तुम्हें? दो मेथड से किए हैं ना, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। डन। लेट मी नो आंसर सेम मिला या नहीं। हो गया। से जैसे इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या कर रहे हो? ई रेस टू माइनस टू एक्स कॉमन निकाल लो तो ये इजी हो जाएगा। देन डिफरेंशिएट करो। ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू माइनस 5y प्लस dy by dx equal to minus 3c1. Differentiate this again with respect to x. Now अभी u into v rule apply करो। So ये क्या आएगा? e raised to minus 2x d by dx of minus 5y plus dy by dx plus minus 5y plus dy by dx and अभी differentiate करो e raised to minus 2x which is equal to 0. Now e raised to minus 2x dy ये हो जाएगा माइनस 5 इज कांस्टेंट dy बाई डी एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ dy बाई डी एक्स इज डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5y प्लस dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू माइनस 2x इज e रेज टू माइनस 2x एंड देन माइनस 2x का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अभी ब्रैकेट ओपन करो एंड सिंप्लीफाई करो। माइनस 5 e रेज टू माइनस 2x dy by dx प्लस e रेस ओके सी e रेस टू माइनस 2x दोनों में कॉमन है। तो जब तुम डिवाइड करोगे e रेस टू माइनस 2x से तो ये यहाँ पे जाएगा 0 हो जाएगा। सो कैंसिल कर दो। नाउ सिंपली ओपन दिस ब्रैकेट माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10y माइनस 2 dy by dx equal to 0. So therefore d square y by dx square minus 7 dy by dx plus 10y equal to 0. So same मिला। चेक करो यहाँ पे जब तुम 3 से डिवाइड करोगे ये इक्वेशन सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 7 dy by dx प्लस 10y इक्वल टू 0। ठीक है।
ओके, सो नाउ 8th हो गया ना. नेक्स्ट सॉल्व 10th one. Y is equal to e raised to minus x a cos x plus b sin x. Okay, complete this and तब तक I'll revise whatever we did. So जिसने भी मिस किया है वो देख लो एक बारी. So हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल इक्वेशन से. That what is a differential equation? Differential equation means a equation which contain independent variable and one or more dependent variable और उसके derivatives like ऐसे dy by dx minus sin x equal to 0. So now this equation contain dy by dx term, right? Similarly, अगर मैंने equation लिखा y square dx plus x square dy is equal to 0. So equation contains this term dx dy. ऐसे equation को बोलते हैं हम differential equation जिसमें derivative के terms involve हो. ठीक है. Now this differential equation is divided into two parts. Ordinary differential equation जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ODE and partial differential equation which is called as PDE. Okay, so हम throughout this chapter सिर्फ ordinary differential equation read करेंगे, partial नहीं. ठीक है, ये तुम्हें हायर स्टडीज में मिलेगा. Now what is a ordinary differential equation? In which dependent variable y depends on one independent variable. Now you know that dy by dx में y होता है हमारा डिपेंडेंट एंड x होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट. सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि ये जो y होगा ये सिर्फ x पे ही डिपेंड होगा, किसी और वेरिएबल पे नहीं. सो इक्वेशन में सिर्फ एक दो वेरिएबल होंगे. फर्स्ट इज दिस डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. राइट, ये होगा हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. पार्शियल में क्या होता है कि y जो है ये वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड होता है. लाइक अगर मैंने इक्वेशन लिया y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सपोज x एंड y बोथ आर वेरिएबल. ठीक है, दोनों वेरिएबल है. तो नाउ अभी y जो है x और z दोनों पे डिपेंड होगा. दैट मीन्स तुम y को विद रिस्पेक्ट टू x भी डिफरेंशिएट कर सकते हो एंड विद रिस्पेक्ट टू z भी. ठीक है, एंड दोनों देन इवन यू कैन फाइंड दिस. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम x से डिफरेंशिएट किया, सेकेंड टाइम z से, लाइक दिस. सो इसको हम बोलते हैं पार्शियल. ये नहीं है तुम्हें अभी, सो ये रीड करने की जरूरत नहीं है. जस्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ के लो, वेयर डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिपेंड ओनली ऑन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, नाउ इसके बाद किया था ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो ऑर्डर क्या होता है, तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक करना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है. फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2. सपोज ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, 2. वो हो गया तुम्हारा ऑर्डर. ओके, अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी का तुम्हें पावर चेक करना है, वो हो जाएगा डिग्री. सो डिग्री इज 1. बट व्हाइल फाइंडिंग आउट डिग्री तुम्हें ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन है ये सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स इनके जो पावर है ये नेचुरल नंबर या फिर इंटीजर्स के फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल
स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे पावर जो है फ्रैक्शन में है तो उसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 1 प्लस डी वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ अभी ये मेरा सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में है। यू कैन फाइंड आउट ऑर्डर एंड डिग्री। ओके, नेक्स्ट इज कि अगर dy बाय dx के टर्म्स तुम्हारे sin x में इन्वॉल्व हैं या फिर एक्सपोनेंशियल में इन्वॉल्व हैं तो उस केस में तुम डिग्री नहीं फाइंड आउट कर सकते। वी कैन नॉट डिफाइन डिग्री, बट तुम ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कल हम मिस लोग वो ने एक आपने एग्जाम्पल लास्ट किया सम था। में ऑर्डर कैसे फाइंड किया? कहाँ पे? वो जो आपने अभी सम दिया देखो, ऑर्डर 2 और डिग्री 1, ये साइड वाला सम। हाँ, वो एक बार बताओ ना, ऑर्डर और डिग्री। तो ऑर्डर ऑर्डर क्या होता है, तुम्हें चेक करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यू नो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट? यस, dy बाय dx इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जब हम इक्वेशन को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx मिलता है, राइट? सो dy बाय dx इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जब डी वाई बाय डी एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। सिमिलरली डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये हमने किया है डिफरेंशिएशन में। सो एन अप टू डी एन वाई बाय डी एक्स एन nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, सो अभी इन दोनों में हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? 2। 2। ओके, सपोज अगर मैंने 3 इक्वेशंस, ओके ये तीनों इन्वॉल्व है, नाउ हाईएस्ट ऑर्डर क्या आएगा? 2। For 1, 2 and 3, highest order 3 आएगा मिस। 3। सिमिलरली अब तुम्हें यहाँ पे चेक करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसका। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया सेकंड ऑर्डर, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? सेकंड। सेकंड। तो वही तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। नाउ अब जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ही तुम्हें पावर चेक करना है। इसका पावर 1 है, सो वो हो जाएगा तुम्हारा डिग्री। ठीक है, समझा। ये वाला एग्जांपल देखो इन दिस। ओरिजिनली ये मेरा क्वेश्चन था, बट व्हाट आई सेड कि इक्वेशन तुम्हारा नॉर्मल पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। हर एक का पावर नेचुरल या इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, सो अभी ये पावर तुम्हारा फ्रैक्शन में, दिस होल पावर इज 1/2 नो। सो डिफरेंशिएट, पहले स्क्वायर करो ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा यहाँ से, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा इधर, राइट? अब तुम चेक करो कि हाईएस्ट ऑर्डर क्या है सबसे पहले। 2। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, हम्म, ये हो जाएगा 2। सो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। अब इसी का तुम पावर चेक करो, 2। 2, राइट? सो डिग्री इज 2। समझा? हाँ समझा। ओके, सो इतना ही किया था हमने कल, ऑर्डर एंड डिग्री। एंड देन इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है। सो सपोज इक्वेशन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2ax। सो अभी यहाँ से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। सॉल्यूशन, एक मिनट, देयर आर टू वेज। फर्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, हम इक्वेशन इंटीग्रेट करते हैं।
और जब सोल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, अभी ये प्रोसेस करना कैसे है? सो सी, सपोज ये इक्वेशन दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 2ax। यहाँ से मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, मीन्स जो इक्वेशन आएगा उसमें dy बाई dx के टर्म्स होंगे, बट ये कांस्टेंट टर्म नहीं होगा a। सो सबसे पहले चेक करना है कि इसमें कितने आर्बिट्री कांस्टेंट हैं। हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट? आर्बिट्री कांस्टेंट मीन्स जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। सो ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट इज a। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे तुम उसको उतने ही बारी डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है? सो अभी यहाँ पे एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है तो सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 2a। नाउ अभी क्या करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद ये कांस्टेंट मेरा एलिमिनेट होना चाहिए, ठीक है? अगर एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो हम एडजस्ट करते हैं टर्म्स को। नाउ अभी 2a का तुमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट योर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हम आगे भी सम्स करेंगे, सो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू मिस। ओके ओके, सो अभी बाकी सब लोग बताओ, 10th हो गया? ओके, सो दिस मच इज क्लियर नो? अभी वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन है? 7, 2 to 7, ठीक है? अभी क्या करना है, अब तक हमने क्या किया है, इक्वेशन हमें दिया था ऑलरेडी एंड देन हमने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया, राइट? वर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, ये इक्वेशन भी हमें ही फाइंड आउट करना है एंड देन इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, समझा? सो सी क्वेश्चन नंबर 2, form the differential equation of family of lines having intercepts A and B on the coordinate axis respectively. Read question carefully. Form the differential equation of family of lines having intercepts A and B on the coordinate axis respectively. So you know this, the equation of family of line having intercept A and B. X upon A plus Y upon B equal to 1. Do you know this? Where A is called X intercept and B is called Y intercept. पता है या नहीं? Okay, अगर नहीं पता है तो note down. The equation of family of line having intercept A and B is X upon A plus Y upon B is equal to 1. अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन, हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है as per said in question. Form the differential equation of this family of line having intercept A and B on the coordinate axis. ओके, ये तुम्हारा इक्वेशन है। अब यहाँ से तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सो सबसे पहले चेक करो कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है यहाँ पे। 2, राइट? सो हम 2 बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 आएगा। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x and find out next equation.
मिस आपने अभी क्या करने बोला? आई सेड सी यूजुअल मेथड क्या है हमारा, हम सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स चेक करते हैं, उससे हमारा ऑर्डर डिसाइड होता है। दैट मीन्स हमें पता चलता है कि हमें कितने बार डिफरेंशिएट करना है, राइट। सो अभी यहाँ पे दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए एंड बी, दैट मीन्स दो बार ही डिफरेंशिएट करना है, ऑर्डर आएगा 2। सो अभी पहले डिफरेंशिएट करो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यस मिस। फाइंड आउट नेक्स्ट इक्वेशन। मिस और फिर से डिफरेंशिएट कर दे। सॉरी, क्या बोल रहे हो? ओके मिस सो फिर बाद में फिर से कर दे डिफरेंशिएट। ओके सो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लिया? यस मिस। ओके तो चेक करो इक्वेशन ये मिला होगा। जब हम LHS को डिफरेंशिएट करेंगे 1/a इज कांस्टेंट एंड डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/b इज कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ y एंड RHS 0, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस 1/b dy/dx इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन। नाउ अभी एक और बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट with respect to x. So derivative of constant is 0 plus 1 upon b is constant, d by dx of dy by dx equal to 0. ठीक है, so therefore 1 upon b ये हो जाएगा d square y by dx square equal to 0. b is constant, यहाँ पे लेके जाओ RHS में, d square y by dx square equal to 0. So ये सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन था, मिला सबको आंसर? दिस इज योर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सी सारे आर्बिट्री कांस्टेंट अभी यहाँ से एलिमिनेट हो गए हैं, तो इसको फर्दर फिर से कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सिर्फ इतना याद रखो कि जब भी क्वेश्चन आएगा तुम्हें चेक करना है कि कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है, उतने बार तुम्हें इक्वेशन डिफरेंशिएट करके कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। नाउ इट्स अप टू यू कि तुम कैसे सिंप्लीफाई करते हो उसको, ओके। ओके नेक्स्ट वन, थर्ड, find the differential equation of all parabolas having length of latus rectum 4a and axis is parallel to the x-axis. Okay, so मैथ्स 1 में तुमने किया होगा, इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, इक्वेशंस ऑफ सर्कल किया है। So see, this is my parabola. Latus rectum क्या होता है? This one, right? यही होता है ना, जिसका लेंथ 4a होता है। Okay, so suppose this is my vertex of parabola. See, ये सब कंस्ट्रक्शंस तुम्हें पता है क्योंकि तुमने मैथ्स 1 में किया है, राइट? अगर नहीं भी किया हो तो प्लीज रिवाइज ऑल दोस थिंग्स। सो दिस इज माय पैराबोला, ये होता है मेरा लैटिस रेक्टम जिसका लेंथ दिया है 4a, बट अब हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपली डायरेक्टली हम इक्वेशन लिखेंगे। यू नो दैट
If length of latus rectum is 4a, then equation of parabola will be y minus k square equal to 4a x minus h if h comma k is vertex of parabola. ये डायरेक्टली इक्वेशन होता है, ठीक है. सो राइट डाउन दिस इक्वेशन. यस आई नो याद नहीं होगा, सो ये इक्वेशन लिख लो एंड देन एक बार ही तुम रिवाइज कर लेना, ठीक है. नो नीड टू रीड ऑल दोज. एक मिनट, तुमको जेई में भी होगा ना ये टॉपिक? हाँ. सो फिर पढ़ लेना, बिकॉज जनरल इक्वेशंस तुम्हें पता होने चाहिए. सो दिस इज माय इक्वेशन जब हमें लेटस रेक्टम का लेंथ 4a दिया रहेगा, ठीक है. सो हम कंसिडर करेंगे h कॉमा के इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और ये हमारा जनरल इक्वेशन होगा पैराबोला का. ओके, नाउ सी हाउ मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स आर देयर. थ्री, राइट. ओके, सो पहले डिफरेंशिएट करो. एक मिनट, just a minute. Here h and k are arbitrary constant. See 4a is length, ये हमेशा 4a ही रहेगा, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. सो a यहाँ पे ये 4a not arbitrary constant. h and k are arbitrary constants. Okay, in this equation हम सिर्फ h and k को arbitrary constant consider करते हैं. ये definition होता है equation का, where h and k are arbitrary constant. So only two arbitrary constants are there. इसका order 2 आएगा. सो फर्स्ट जब तुम पहले डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसा मिलेगा, चेक करो बस. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो d by dx of y minus k square equal to 4a is constant, d by dx of x minus h. सो ये डेरिवेटिव आएगा 2y minus k, again d by dx of y minus k, use chain rule. This is equal to 4a. Derivative of x is 1, derivative of h is 0. Now this 2y minus k dy by dx and derivative of this k is 0 equal to 4a. Okay. Again differentiate this with respect to x. Again differentiate with respect to x. तो ये क्या आएगा, 2 is constant. Now use chain rule. नहीं, पहले u into v rule use करो. So y minus k into derivative of dy by dx plus dy by dx as it is, 2 is constant, d by dx of y minus k and RHS हो जाएगा 0. So therefore 2y minus k d square y by dx square plus 2 dy by dx. अब देखो dy by dx minus 0, this is equal to 0. ये दोनों टर्म डिफरेंट है. ओके, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एंड डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये होल स्क्वायर आएगा. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 2.
एंड दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड देन 2 कॉमन निकाल के RHS में भेजो तो 0 हो जाएगा। सो ये मुझे मिला इक्वेशन 3। ओके ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट स्टेप? क्या सारे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए? नो नो, एंड हम फर्दर इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर 2 आएगा। सो अभी क्या करना है, हमें टर्म्स को अरेंज करना है। मीन्स तुम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 यूज कर सकते हो टू एलिमिनेट कांस्टेंट। से दिस इक्वेशन 1, इसका यूज हम नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे y माइनस के एंड x माइनस एच टर्म्स हैं। बट क्या तुम इक्वेशन 2 एंड 3 यूज कर सकते हो? सी हमें y माइनस के यहाँ से रिमूव करना है, राइट? क्या हम यहाँ से y माइनस के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो फॉर y माइनस के एंड इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करो। So from 2 दोनों को डिवाइड, हाँ यस डिवाइड कर सकते हो, लेकिन एक मिनट, नो तुम डिवाइड नहीं कर सकते बिकॉज सी आई टेल यू, तुम 2/3 नहीं कर सकते बिकॉज RHS इज 0, ये टर्म 0 है, बराबर? सकते हो ना मैम? हाँ 2/3 नहीं कर सकते बिकॉज फिर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा विच इज इनफाइनाइट, तो वो नहीं हो सकता। अगर तुमने 3/2 किया, ठीक है, सो आई टेल यू पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन 3, y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सपोज तुम ये दो का रेशियो ले रहे हो, सो ये हो जाएगा 2 इंटू वाई माइनस के डी वाई बाई डी एक्स लाइक दिस, नो? बट अब फिर मुझे ये बताओ, अगर तुमने डिनोमिनेटर सेपरेट किया तो फर्स्ट टर्म से तो y माइनस के कैंसिल हो जाएगा, बट सेकेंड टर्म में तो वापस से आ गया ना y माइनस के। तो वो राइट में जाके 0 बन जाएगा ना? देन वो अगेन इक्वेशन 2 मिल गया ना, इक्वेशन 3। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस डिवीजन? समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? गेटिंग माय पॉइंट? मैम नहीं Okay. तो ये जो dy बाई dx स्क्वायर है उसको राइट में लेके जाएंगे डिवाइड करने से पहले। इसको दिस वन, नो? ऊपर वाला सेकंड टर्म, हाँ उसको पहले राइट में लेके जाने के बाद डिवाइड किया तो y माइनस के कैंसिल हो जाएगा। हाँ मैम। ओके, दिस यू कैन डू, यस। सो पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करो फिर। ओके, सो पहले इसको सिंप्लीफाई करो, y माइनस के डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब तुम डिवाइड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स एंड यहाँ पे 4a। नाउ दिस इज फाइन आई गेस, यस। सो ये कैंसिल हो गया। अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जो जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर लो, यहाँ पे 2 आ गया। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगा a इंटू 2a इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस
dy by dx cube. So therefore 2a d square y by dx square plus dy by dx cube equal to 0 is my required differential equation. Okay, ऐसे किया तो भी चलेगा, अदरवाइज तुम इक्वेशन 2 से y माइनस के का वैल्यू फाइंड आउट करो और सिंपली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, सेम इक्वेशन मिलेगा. ठीक है, सो चेक आउट कर लो, एक बार चेक करो. फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं इक्वेशन फॉर्म करके देती हूँ, तुम आगे सॉल्व करोगे एज अ होमवर्क. ओके, सो इक्वेशन फॉर्म करते हैं. Find the differential equation of an ellipse whose major axis is twice the minor axis. Do you know what is major and minor axis? अच्छा, सिंपल एलिप्स का इक्वेशन पता है क्या? Yes or no? No. Okay. So do one thing. आज का होमवर्क यही है कि तुम्हें जनरल इक्वेशंस पढ़ना है फॉर पैराबोला, फॉर एलिप्स एंड फॉर सर्कल. ठीक है, ये पता होना ही चाहिए कि इक्वेशंस क्या आएंगे. सो जनरली एलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. डू यू नो द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर 0 एंड रेडियस r? टेल मी. x square plus y square equals to r square. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. सपोज सेंटर अभी 0 नहीं दिया, या सेंटर इज नॉट योर ओरिजिन, कोई भी एक सेंटर ले लो h, k. In this case, equation of circle will be yes. Okay. So जब सेंटर तुम्हारा ओरिजिन नहीं होगा तब इक्वेशन ऑफ सर्कल आएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. फाइन. तो ये जनरल इक्वेशंस पता होना चाहिए. दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. मेजर एक्सिस होता है 2a. okay, and this is my length of major axis. Length of minor axis होता है 2b. a और b तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा. So length of major axis is 2a, length of minor axis is 2b. ठीक है, इतना हो गया. Now question देखो, find the differential equation. Find the differential equation of an ellipse whose major axis is twice its minor axis. Means सी हमें एलिप्स के लिए कंडीशन दिया है दैट मेजर एक्सिस का लेंथ जो है इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. ट्वाइस द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस. सो अभी हमने देखा है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मीन्स 2a एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मीन्स 2b. सो दैट्स व्हाई a इक्वल टू 2b. राइट. नाउ अभी इक्वेशन लो एलिप्स का एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस कंडीशन के साथ जो एलिप्स मिलेगा उसका हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है. सो ये कंडीशन अप्लाई करो, a इक्वल टू 2b. सो एक्स स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. राइट.
अभी इसका तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। सो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट है? एक 1। सो ऑर्डर 1 आएगा। ठीक है, कंप्लीट कर लोगे? Yes, miss. ओके, कंप्लीट दिस एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, सो स्टॉप करते हैं यहीं पे। अगर कुछ डाउट रहेगा तो नोट